welcome to another video of immunology. In this video, we will discuss about immune cells. That is, what type of immune cells are present in your body and how it responds upon an antigen. Okay. So, in this particular video, we will discuss 4 sections, that is myeloid progenitor cell, lymphoid progenitor cell, innate immunity and adaptive immunity. These two parts, that is innate and adaptive, will be just introductory part. Okay. On separate video will be made regarding these two topics. So let's start. So first I will give an introduction about what type of cells are present in our blood. So as we all know, first one is RBCs, that is red blood cells. Okay. And second is WBC, that is white blood cells. WBC, that is white blood cells. So these white blood cells are the immune cells. Okay, immune cells. So why not RBCs? Why RBCs do not work as an immune cell? Because there are many reasons. Because RBCs don't have immunoglobulin receptor, that is antibody receptor नहीं होता है. ठीक, antibody receptor का काम क्या है? Whenever an antigen enter in our body, suppose this is an antigen, when it enter in our body, so when B cell will give response, so it will generate what? Antibodies, है ना? And these antibodies bind to the other immune cell, other cells, to give response against an antigen. So that's why the presence of this immunoglobulin receptor is must on an immune cell. So this lacks, RBC lack immunoglobulin receptor, and it also do not secrete cytokines. cytokine का secretion नहीं होता है RBC से. Cytokines are released by your T cells, okay, in response to any antigen. And apart from this, the main thing is this RBC cannot recognize an antigen. Okay, cannot recognize an antigen. Okay. So when it cannot even recognize, so how could it respond? Okay, so these are the reasons why RBCs do not work as an immune cell. तो अब इतना समझ में आ गया. अब हम WBCs के बारे में पढ़ेंगे. पहले हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे. So as we all know that cells are derived from your stem cells. So there are two main lineages, that is myeloid and lymphoid. ठीक, तो myeloid का further classification होता है mast cell में और myeloblast में. And these myeloblasts are further divided into neutrophil, basophil, eosinophil and monocyte. This monocyte is further divided into dendritic cell and macrophage. The mature form of monocyte is macrophage. In blood, this monocyte exists as a monocyte, but in tissue, this monocyte is matured into macrophages. So, and if we talk about lymphoid progenitor cells, so there are natural killer cells, T cells, B cells. Okay. So this part, all these myeloid cells and NK cells response in innate immunity, that is the immediate response upon insertion of any antigen. innate immunity response आता है. ठीक, और उसके अलावा इधर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो टी सेल का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है TH सेल में और TC सेल में. ठीक, TH सेल में, TC सेल में, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. और TH सेल का फर्दर क्लासिफिकेशन था TH1, 2 नॉट, दिस इज नाइव टी सेल. ठीक, TH नॉट, TH1, 2, 17 T रेगुलेटरी. So these are the cells and they are derived from your T cells. और B cell, so these B cell, T cell and natural killer cell, they are involved in your adaptive immunity. Okay, so natural killer cell, that is NK cell, is common in your innate immunity as well as adaptive immunity both. ठीक, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन. और इसके अलावा ये जो 3 सेल है, these 3 cells is eosinophil, basophil and neutrophil, they are granulocytes, that is they have granules inside them. This mast cell, it also have granules inside them. Okay, so अब हम
पहले ये जितनी भी ग्रेनुलोसाइट्स थी इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे जो नॉन ग्रेनुलोसाइट है, फिर ए ग्रेनुलोसाइट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये है, एक तो 3 ग्रेनुलोसाइट है, जैसे बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स। तो पहले हम न्यूट्रोफिल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल, तो न्यूट्रोफिल ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग इसकी होती है न्यूट्रल डाई से। न्यूट्रल डाई, डाई का नाम क्या है? हिमेटोजाइल। हिमेटोजाइल। एंड आफ्टर स्टेनिंग जो कलर आता है वो कौन सा आता है? पिंक कलर आता है। न्यूट्रोफिल ये फाइगोसाइटिक सेल है, फाइगोसाइटिक सेल है, ठीक। ये मेन कंपोनेंट है, पस सेल में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सेल में इनका प्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा इनकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ इज अप्रॉक्स 5 to 8 days। और जो मेन बात है न्यूट्रोफिल्स की ये है कि whenever there is any injury, suppose this is your skin, suppose whenever there any injury, so IL-8 का सिक्रेशन होता है, इंटरल्यूकिन 8 का सिक्रेशन होता है। So these neutrophils will be present in your blood, okay? So they sense this interleukin 8 and they reach at the site of the injury by chemotaxis. So they are the cell that show chemotaxis, and और यहाँ पर जो भी इंजरी होगा वहाँ पर किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोकेगी न्यूट्रोफिल्स, ठीक। तो ये IL-8 को सेंस कर रहा है, तो इस पर रिसेप्टर कौन से प्रेजेंट होंगे? IL-8 ना। तो यहाँ देखते हैं, तो दिस इज योर न्यूट्रोफिल, तो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा इंटरल्यूकिन 8 का, इसके साथ साथ प्रेजेंट होगा इम्यूनोग्लोबुलिन G का। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूट्रोफिल्स के बारे में कि इस पर कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट हो। और ये यहाँ जो न्यूट्रोफिल्स है ये मल्टी लोब्ड होती हैं, मल्टी लोब्ड होती हैं, दैट इज जो ये सेल है इनके अंदर लोब टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो मल्टी लोब होती है, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं, सही। और फर्दर न्यूट्रोफिल क्लासीफाई हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लोब्स, कुछ में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ लोब्स इनका फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है, ठीक। तो ये हो गया न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। तो ये कैसे किलिंग करता है किसी भी इन्फेक्शन का? पहला ग्रेनुलेशन, दैट इज़ ये ग्रेनुलोसाइट है तो अंदर ग्रेन्यूल्स होंगे, उन ग्रेन्यूल्स में एंजाइम्स होंगे। तो अपॉन यहाँ पर देखो इस फिगर में, तो ये ग्रेन्यूल से कुछ एंजाइम निकल रहा है और ये बैक्टीरिया को किल करेंगे। पहला हो गया ग्रेनुलेशन। दूसरा फाइगोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेते हैं, फिर फर्दर लाइसोसोम से उनका मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रेट होंगे, ठीक है। तो ये फाइगोसोम बना और ये लाइसोसोम, तो फाइगोसोम लाइसोसोम का फ्यूजन हुआ और बैक्टीरिया फिर फर्दर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया फाइगोसाइटोसिस। फिर तीसरा है तुम्हारा नेटोसिस, ठीक। इसमें क्या होता है नेटोसिस में? एक ये DNA डेकोरेटेड विद योर हिस्टोन प्रोटीन और कुछ अदर एंजाइम, जैसे ये एलास्टेज, ठीक है। तो ये एक प्रोजेक्शन जैसा निकला होता है, तो इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे ये एलास्टेज या लियो पेरोक्सीडेज, ठीक। तो इन एंजाइम से ये बैक्टीरिया, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें अटैच होता है और फिर कुछ एंजाइम्स जो है इसको किल कर देते हैं, ठीक। तो बस यही है, इतना मतलब वैसे तो काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्शन है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है, तो बस इतना समझिए इसका कौन कौन सा फंक्शन है। तो ये डीग्रेनुलेशन, फाइगोसाइटोसिस और नेटोसिस, ठीक है। और
इसको जो है हम कहते हैं नेटोसिस का जो फुल फॉर्म है NET, ठीक है, ये होता है न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रैप। ओके, ना ये ट्रैप जैसा होता है, बैक्टीरिया इसमें फंसता है, फिर जो एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट होता है और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये 3 फंक्शन है न्यूट्रोफिल्स के। अब है बेसोफिल्स, ठीक, दूसरी हमारी ग्रैनुलोसाइट है बेसोफिल। तो ये बेसोफिल सेल का स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड है, 2 लोब दिख रहा है ना, एक ये एक ये, ठीक। तो इसका जो सेल सरफेस की बात कर लेते हैं। तो इस पर देखो, ये रिसेप्टर होता है इम्यूनोग्लोबिन G के लिए और E के लिए, ठीक है। तो लेकिन मेजरली IgE रिसेप्टर ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये एलर्जिक रिस्पॉन्स और हाइपर सेंसिटिविटी में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ देखो, तो क्या होता है, जैसे ये बी सेल है, ठीक, तो इस पर IgE रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो IgE जब भी जो भी एलर्जिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे पॉलन ग्रेन्स हो गया या फिर कोई फ्रेगनेंस हो गई, तो फिर वो फ्रेगनेंस मतलब उसका जो भी मॉलिक्यूल होगा तो एलर्जन होगा, तो एलर्जन के रिस्पॉन्स में IgE बनती है, ठीक। और अगर एंटीबॉडी वाली क्लास याद करें तो उसमें एंटीबॉडी IgE का सिक्रेशन एलर्जन के रिस्पॉन्स में होता है, ठीक है। तो और फिर वो IgE बेसोफिल पर बाइंड करेगी और फिर ये कुछ केमिकल का सिक्रेशन करेगा जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो उन ग्रेन्यूल्स में फिल होता है हिस्टामिन और हिपेरिन। हिपेरिन तो आपका एंटीकोगुलेंट एजेंट है, एंटीकोगुलेंट एजेंट है। ये जो हिस्टामिन है ये प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है, प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वैसो डायलेशन हो जाता है। तो देखो, जैसे हम जो फ्लावर वगैरह होता है उससे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो वो अगर अंदर चले जाते हैं तो एलर्जी रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि हिस्टामिन का सिक्रेशन होने लगता है बेसोफिल से, और कुछ और सेल्स है जैसे मास्ट सेल, उनसे भी हिस्टामिन का सिक्रेशन होता है, तो हमें छींक आने लगती है और भी जुकाम वगैरह हो जाता है। तो ये हो गया बेसोफिल के फंक्शन के बारे में। तो बेसोफिल पे कौन कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है, IgE, G भी है, लेकिन E का मेजर काम होता है क्योंकि ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम आते हैं, ठीक है। तो और इस पे और अदर भी कुछ कुछ चीज़ें प्रेजेंट है, IL इंटरल्यूकिन 3 के लिए है, 8 के लिए, 18 के लिए है, लेकिन ये सब काम करनी है, मेन यही था, ठीक। और ये तीसरी सेल आपकी इओसिनोफिल्स। एक चीज़ और रह गई थी कि बेसोफिल की जो स्टेनिंग होती है, स्टेनिंग जो होती है बेसिक डाई यूज़ होती है उसमें, उसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, ओके। और बेसोफिल की एक और ख़ास बात है कि ये नॉन फाइगोसाइटिक है, नॉन फाइगोसाइटिक इन नेचर। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा बेसोफिल्स के बारे में। यूसिनोफिल की स्टेनिंग होती है एसिडिक डाई से, नाम क्या है, यूसिन। यूसिनोफिल ये सेल है, तो इस IgE रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है, G भी होता है, ठीक। और eosinophil क्या है आपकी, बाइलोब्ड है, ठीक, मतलब इसमें 2 लोब प्रेजेंट होती हैं, देखो इसमें भी ये है, एक ये है, बाइलोब्ड होती हैं, और इसमें अंदर ये ग्रेन्यूल्स भी हैं। तो और इसके अलावा यूसिनोफिल का इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है, एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन में। एंडोपैरासाइट इन्फेक्शन में यूसिनोफिल का रोल आता है, और पैरासाइट इन्फेक्शन में जो है रोल आता है आपका बेसोफिल्स का, ठीक है। ये याद रखिएगा कि किसका किसमें होता है, एक्टो बेसोफिल्स में और एंडो का यूसिनोफिल्स में।
ये हो गया ईओसिनोफिल्स के बारे में, इतना ही था, मतलब जो आपके गेट के रिस्पेक्ट में पूछते हैं। तो ये भी मतलब इस पे आईजी रिसेप्टर है, तो ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में जो है काम करेगा। ग्रेन्यूल्स हैं हिस्टामिन का सेक्रेट। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट, ये ग्रेनुलोसाइट। तो लिम्फोसाइट में कौन कौन सी सेल्स थी आपकी, पहले एन के थी, इसके बारे में बाद में देखेंगे। एन के सेल्स थी, टी थी, बी सेल, थ्री थी बी सेल। बी सेल काम कैसे करती है, एंटीबॉडी का सिक्रेशन कर। टी सेल दो तरह की होती है पता है, टी एच सेल और टी सी सेल। टी एच सेल पे ये, अच्छा ठीक है, टी सेल जब डिस्कस करेंगे तभी इसको बताएंगे। बी सेल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ एक मैंने डाला है जिससे पता चल सके कि इनेट इम्यूनिटी में किसका रोल आता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में मेजरली किसका रोल आता है। तो ये देखो, एपिथेलियल बैरियर दैट इज़ योर स्किन, तो ये किसी भी माइक्रोब को अंदर आने में रोकती है ना। डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज, न्यूट्रोफिल, जो नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, नेचुरल किलर सेल्स, तो ये सारी सेल्स आपकी इनेट इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स है। तो अपॉन एनी एंट्रेंस ऑफ एनी एंटीजन तो 12 आवर्स आपका इनेट इम्यूनिटी चलता है। एडेप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा लेट स्टार्ट होता है, लेकिन इसका लॉन्ग टाइम परसिस्टेंस रहता है किसी भी एंटीजन को हटाने। तो स्टार्टिंग में अप टू 12 आवर आपका इनेट इम्यूनिटी चलता है, उसके बाद फिर आपका सेवरल डेज और ईयर्स तक एडेप्टिव इम्यूनिटी रहता है। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी में किसका रोल आता है, साइटोकाइंस हैं, टी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, टी हेल्पर आती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल आती हैं, ठीक, हायर एफिनिटी एंटीबॉडी जो कि रिलीज होती है बी सेल्स से। तो ये सारा एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। इसके साथ साथ इनेट इम्यूनिटी में आता है रिस्पॉन्स। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, हो जाता है गेट में। तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होंगी उनसे फिगर में देखो इंटरफेरॉन्स का सिंथेसिस हो रहा है, फिर ये कहीं कहीं पर बाइंड करते हैं, कुछ सेल्स पर बाइंड करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी को स्टार्ट करने के लिए ये सेल पर बाइंड करते हैं, वहाँ पर सेल सिग्नलिंग होती है। कौन सी सेल सिग्नलिंग होती है, जैक स्टैट। जैक स्टैट पाथवे चलता है, ठीक है, ये सेल सिग्नलिंग का पार्ट है। तो वहाँ पर अगर कभी कोई डिस्कशन होगा तो फिर बताएंगे। अभी बस इतना जानिए कि इंटरफेरॉन से आपका जैक स्टैट पाथवे शुरू होता है, तो उससे एंटीवायरल प्रोटीन सिक्रीट होते हैं जो कि उस वायरस से प्रोटेक्शन देती हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन होता है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, ये जो इंटरफेरॉन्स है ये डेंड्राइटिक सेल, ई सेल, बी सेल पर बाइंड करते हैं, जिससे फिर एंटीबॉडीज़ या फिर टी सेल है तो साइटोकाइंस का सिक्रेशन होता है और फिर उस सेल को एलिमिनेट किया जाता है। तो ये लॉन्ग टाइम प्रोटेक्शन है और ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट। तो ये हो गया आपका इंटरफेरॉन्स के बारे में। तो अब हम लिम्फोसाइट को ठीक से देख लेते हैं। तो पहला है हमारा बी सेल, दूसरा है टी सेल, पहले बी सेल है, ठीक है, एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं। टी रेगुलेटरी सेल है, टी एच सेल है, यहाँ मैं एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। टी सेल के बारे में बात करेंगे, बी सेल तो सिर्फ एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो टी सेल दो तरह की होती है, टी एच सेल और टी सी सेल, ठीक। टी एच सेल पर जो मार्कर प्रेजेंट होता है वो CD4, तो इसी पर जो प्रेजेंट होता है वो होता है CD8, ठीक है। इन्हें साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, इन्हें हेल्पर टी सेल कहते हैं। तो ये जो, अगर ये याद करने में दिक्कत हो रहा है THCD4, तो अगर तुम 4 लिखो तो ये थोड़ा थोड़ा एच की तरह रिजेंबल कर रहा है ना। तो TH के लिए 4, दूसरा वाला याद ही रहेगा, TC के लिए CD8। ये गेट पूछ लेते हैं कभी कभी कौन सी सेल पर कौन सा CD मार्कर होता है, तो TC पर तुम्हारा CD8 होता है, TH पर CD4 होता है, ठीक है।
तो TH सेल आगे फंक्शन हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, तो पहले अभी हम B सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो B सेल के सरफेस पे, मान लीजिए हमारा B सेल है, तो इसके सरफेस पे बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वही रिसेप्टर यहाँ पर मैंने मेंशन किया कौन कौन से होते हैं। पहला तो बी सेल है, तो बी सेल पर जो है उसका रिसेप्टर होगा जिससे वो एंटीबॉडी को बाइंड करके, सॉरी एंटीजन को बाइंड, एंटीजन उस पर बाइंड करेगी, फिर अंदर जो है प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके अगेंस्ट कोई भी काम होगा, ठीक। तो उसके लिए कौन सी यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, ये मेम्ब्रेन बाउंड IgM। और इसके अलावा जो नाइव बी सेल है, मतलब जिसने मतलब जो भी वर्किंग एक्टिवेटेड नहीं है, उस पर जो है आपका ये इम्यूनोग्लोबुलिन, मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन एम और इम्यूनोग्लोबुलिन डी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक। और इसके साथ साथ ये हैवी चेन और लाइट चेन बोला गया, तो ये इसको BCR कहते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ यहाँ पर होता है CD19, लिखा भी है CD19, ठीक। CD21 भी होता है। और ये IG अल्फ़ा बीटा, इसको CD79A और 79B भी कहते हैं। इसका रोल क्या होता है, ये IG अल्फ़ा बीटा का, ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है। तो जब भी यहाँ पर कोई एंटीजन आकर बाइंड किया, तो सिग्नल अंदर जाएगा कि अब मतलब कैसे कैसे प्रोसेसिंग हो करके फर्दर सेल जो है डिफ्रेंशिएट और प्लोरीफरेट करेगी, बी सेल, है ना, यहाँ बी सेल के बारे में बात हो रही है, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर CD19 होता है, ठीक है। तो ये एडिशनल सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल है जो कि BCR से अटैच रहता है, तो इसको एक साथ हम BCR कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक। और इसके अलावा बी सेल है, तो इस पर बी सेल एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल काम करती है, ठीक है, APC की तरह वर्क करती है, ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है। तो इसके लिए MHC मॉलिक्यूल होता है, MHC2 पढ़े होंगे आप लोग। तो बी सेल पर आपका MHC2 प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू वो टी जो भी एंटीजन का प्रोसेसिंग करके फिर फर्दर अदर सेल जैसे T सेल को प्रेजेंट कर देती है कि फिर उसके अगेंस्ट और साइटोकाइंस वगैरह का सिक्रेशन हो जिससे उसे डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक। इसके अलावा CD40 प्रेजेंट होता है, ये B7 जिसको CD80 86 भी कहते हैं। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर एक चीज़। ये CD19 ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन ज़रूरी है कि कौन सा होता है, तो पहले मेम्ब्रेन बाउंड IgM, मेम्ब्रेन बाउंड IgD, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक। ये आपका सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल जैसे कि IG अल्फ़ा और बीटा, ये प्रेजेंट होता है। CD19 इंपॉर्टेंट है, MHC2 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये B7, ये को स्टिमुलेटर सिग्नल के लिए होता है कि सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ना, तभी तो सिग्नलिंग होती है, तो उसके लिए ये B7 है, ठीक। और इसके अलावा ये CD32, तो ये सारी चीज़ें बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब बी सेल का एक्टिवेशन कैसे होगा, मान लो कोई भी हेल्दी सेल है, ठीक है, ये एंटीजन एज अ वायरस, ठीक है, ये एंटीजन जो है आ गया, इसको इन्फेक्ट कर दिया, ठीक। तो ये यहाँ पर एंटीबॉडी जो मेम्ब्रेन बाउंड था रिसेप्टर, उससे जो इसने रिकॉग्नाइज किया, ठीक। फिर उसके बाद जो है ये साइटोकाइंस का सिक्रेशन होने से पहले भी कुछ चीज़ें होती हैं, वो ये कि साइटोकाइंस का सिक्रेशन तो बाद में होता है टी सेल के थ्रू, बी सेल को फर्दर एक्टिवेट करने के लिए, ठीक। तो ये बी सेल जो है कम्युनिकेट करती है टी सेल से, ये जो है इस सेल को, जो तुम्हारा ये इन्फेक्टेड सेल है, तो एंटीजन को इंटरनलाइज कर देगा, तो प्रोसेसिंग होगा, वो मतलब फर्दर लाइसोसोम और एंडोसोम और लाइसोसोम का फ्यूज़न होगा, फिर वो एंटीजन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और फिर वो MHC मॉलिक्यूल के थ्रू, MHC2 के थ्रू जो है यहाँ सरफेस पर प्रेजेंट कर दिया जाएगा। फिर इससे जो तुम्हारा टी सेल अटैच होगा, टी सेल पर भी कुछ रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर के थ्रू ये उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, फिर अंदर जो है ये सिग्नलिंग होकर के फिर साइटोकाइंस का सिक्रेशन होगा, फिर वो फर्दर साइटोकाइन जो है बी सेल पर जा करके बाइंड करते हैं, और फिर बी सेल जो है प्लोरीफरेट और डिफ्रेंशिएट करके मेमोरी सेल और प्लाज्मा बी सेल बनाती हैं। ये प्लाज्मा बी सेल जो है मेमोरी सेल तो स्टोर हो जाती हैं, ठीक।
और प्लाज्मा बी सेल एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं। वो एंटीबॉडीज जो है जा करके अदर सेल्स पर बाइंड करते हैं, जैसे तुम्हारा मैक्रोफाज हो गया। और एंटीबॉडी का कहाँ पर हमने बाइंडिंग साइट पढ़ा है कि न्यूट्रोफिल्स पर होता है, ठीक, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। तो उस पर जो है जाकर के बाइंड होती हैं और फिर वो सेल जो है फाइगोसाइटोसिस करते हैं, जिससे कि उस एंटीजन को ख़त्म किया जा सके। तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। अभी मैंने बहुत अच्छे से नहीं बताया, बस एक ओवरव्यू बताया, तो बस इतना ही समझिए अभी के लिए। यहाँ पर भी एक इमेज मैंने डाल रखा है, ये कैसे ये एंटीजन बाइंड हुआ, फिर अंदर सिग्नलिंग हुई, फिर यहाँ पर उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए और फिर ये एमएचसी के थ्रू सरफेस पे प्रेजेंट कर दिया गया। यहाँ पर ये एमएचसी मॉलिक्यूल है, एमएचसी के थ्रू ये सरफेस पर प्रेजेंट कर दिया। फिर यहाँ पर टी सेल इससे अटैच करके फिर टी सेल में अंदर सिग्नलिंग हुई। सिग्नलिंग के लिए यहाँ पर जो है होता है CD3, तो थ्रू सिग्नल अंदर गया, फिर अंदर से साइटोकाइंस बाइंड किया, साइटोकाइंस का रिलीज हुआ और ये साइटोकाइंस जो है फिर फर्दर बी सेल पर बाइंड किया। फिर बी सेल ने फर्दर प्लोरीफेट और डिफ्रेंशिएट करके प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा बी सेल कैसे एक्टिवेट होती है, ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। और इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बतानी है कि जो बी सेल होती हैं जो प्लोरीफेट और डिफ्रेंशिएट करती हैं, जैसे तुम्हारा बी सेल है प्लोरीफेट और डिफ्रेंशिएट किया, तो ये इसने प्लाज्मा बी सेल बनाई, मेमोरी बी सेल बना। तो प्लाज्मा बी सेल जो होता है ये 15 डेज इनका लाइफ स्पैन, और इस 15 डेज में ये शुरू के 10 डेज, जो स्टार्टिंग 10 डेज हैं उसमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनाते हैं। ये हमने इम्यूनोग्लोबुलिन वाली क्लास में भी देखा है कि जो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनती है वो IgM बनती है। फिर लास्ट 4 to 5 डेज जो है क्लास स्विचिंग हो करके डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एंटीजन इंटर IgG, E और A का सेक्रेशन होता है। और ये जो कन्वर्जन हुआ IgM से GEA में, इसे हम बोलते हैं क्लास स्विचिंग, क्लास स्विचिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, ये याद रखिए क्लास स्विचिंग क्या होता है। तो स्टार्टिंग के 15 डेज प्लाज्मा बी सेल्स बनती हैं, तो ये इन्होंने इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी M और GEA बनाया और फिर मेमोरी सेल स्टोर हो जाती है उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए। ठीक है, मेमोरी सेल्स का रोल कहाँ होता है, मेमोरी सेल्स का रोल कहाँ होता है कि जब वही सेम एंटीजन, अगर सेम एंटीजन सेकेंड टाइम या मल्टीपल टाइम एंटर करता है तो मेमोरी सेल्स जो है एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं। और जब मेमोरी सेल एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं मेमोरी बी सेल्स, तो कौन कौन सी एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगी, वो करेंगी IgG, E और A। D का तो कोई बायोलॉजिकल फंक्शन ही नहीं है, तो वो नहीं, उनका पता नहीं हमें, लेकिन ये IgGEA इनका सिक्रेशन, लेकिन कभी भी IgM का नहीं होता है, ये याद रखिए। मेमोरी सेल कभी भी IgM नहीं सिक्रेट करती, वो इम्यूनोग्लोबुलिन GEA ही करेंगी। ठीक है, और मेमोरी सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका होता है 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, सालों तक रहती है ना, तभी तो अगर एक बार आपको किसी डिसीज़ के लिए अगर कोई वैक्सीन लग जाती है तो उसके लिए मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, फिर अगर वही सेम डिसीज़ नहीं होती है, क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हो गया मेमोरी सेल्स के बारे में। तो बी सेल हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑल्दो मैंने एक्टिवेशन बहुत अच्छे से नहीं बताया क्योंकि अभी सेल का इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा टी सेल। टी सेल, तो टी सेल यहाँ पर दो तरह के होते हैं, TH सेल और TC सेल। तो कौन सी सेल पे कौन सा रिसेप्टर होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कौन कौन सी CD होती हैं। तो टी सेल पे आपका जो मेन है वो ये CD3 TCR, दैट इज़ योर टी सेल रिसेप्टर। CD4 TH पर आपकी CD4 होंगी, अभी मैंने बताया था। ये CD3 टी सेल के लिए यूनिक है कि ये एज अ मार्कर काम करता है। जब भी अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि वो टी सेल है कि कोई दूसरी सेल है, तो हम CD3 के लिए करते हैं, तो ये इसके लिए यूनिक है। इसी तरह TC के लिए
यहाँ पर CD3, यहाँ पर TCR टी सेल रिसेप्टर दैट इज, और उसके अलावा यहाँ पर होता है CD8। ठीक, तो जो CD4 होता है, CD4 नहीं, जो TH सेल पर जो रिसेप्टर होते हैं वो जो है TH पर जो रिसेप्टर होते हैं वो MHC2 मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक, और MHC2 मॉलिक्यूल आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? MHC2 ये आपके APCs पर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन कौन सी होती हैं? ये होती है डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफाज और बी सेल। बी सेल के बारे में हमने पढ़ लिया है, डेंड्राइटिक और मैक्रोफाज आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग का मीनिंग क्या है कि कोई भी एंटीजन बॉडी में अगर इंटर किया है, एंटीजन अगर बॉडी में इंटर किया है तो ये सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करके उसे अंदर इंटरनलाइज करके उसका छोटा टुकड़ा डिस्ट्रॉय करके फिर उसको ये MHC2 के थ्रू प्रेजेंट कर देंगे सरफेस पे। फिर जब ये सरफेस पर आ जाएगा तो टी सेल उसको जो है रिकॉग्नाइज करेगी, फिर सिग्नलिंग होगी अंदर, फिर वो उसके अगेंस्ट साइटोकाइंस का सिक्रेशन करेगी जिससे उस एंटीजन को किल किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। ठीक है, तो ये बी सेल के बारे में पढ़ लिया, डेंड्राइटिक और मैक्रोफाज हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो TH सेल आपकी MHC2 को रिकॉग्नाइज करती है और TC जो है ये आपके MHC1 को। ओके, तो मतलब ये जस्ट एन इंट्रोडक्शन। टी सेल का पहले तो हमने TC और TH में क्लासिफिकेशन देख लिया। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट टी सेल का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है अल्फ़ा बीटा और गामा डेल्टा में। दोनों का काम क्या है? अल्फ़ा बीटा मेजरली प्रेजेंट होती है, मतलब ऐसी टी सेल जिन पर अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर वो मेजरली प्रेजेंट होती है अबाउट 95%। और ये जो भी आपके प्रोटीनेशियस एंटीजन होंगे उनके लिए होता है। गामा डेल्टा काम क्या होता है? ये अप्रॉक्स 5% होती हैं और ये जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ठीक इनके अगेंस्ट देती है। और गामा डेल्टा टी सेल्स जो हैं ये इनेट इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करती हैं, इनेट इम्यूनिटी। और गामा डेल्टा का जो प्रेजेंस होता है वो होता है टिश्यू में। ठीक, तो टिश्यू में आपकी मैक्रोफाज भी प्रेजेंट होती हैं और उसके साथ गामा डेल्टा टी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये रिसेप्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगी। ठीक, तो अब हम TC के बारे में पढ़ेंगे। तो जो TC सेल्स होती हैं उनकी खास बात क्या होती है? TC को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक, तो सपोज ये सेल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लिएटेड हैं। एक चीज़ और, जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, ठीक है, सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स पर आपका MHC1 प्रेजेंट होगा। MHC1 सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स पे प्रेजेंट होगा। और जितनी भी ई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं या फिर कैंसरस सेल्स हैं उन पर जो है MHC1 नहीं होगा। ठीक, ई न्यूक्लिएटेड और कैंसरस सेल पर MHC1 नहीं होता है। ठीक है, तो TC यहाँ पर हम देख रहे थे जैसे सेल है न्यूक्लिएटेड है तो इस पर जो आपका MHC1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, MHC1। तो TC सेल इस MHC1 को रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक, ये मान लो इन्फेक्टेड हो गया एंटीजन से, एंटीजन इस पर इन्फेक्शन हो गया तो ये MHC1 को रिकॉग्नाइज करेगी। फिर इसका एक्टिवेशन होगा TC सेल का और ये क्या सिक्रिएट करेगी? ये कुछ एंजाइम सिक्रिएट करते हैं जैसे परफोरिन और दूसरा ग्रेंजाइम। परफोरिन का काम क्या होता है? ये पोर्स क्रिएट कर, ये सेल में पोर्स क्रिएट कर देंगे। और ग्रेंजाइम एक तरह का सीरीन प्रोटीएज है, तो ये क्या करेगा? ये एपोप्टोसिस करवाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है? उस पोर्स से और ये प्रोटीएज से सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है, सेल की किलिंग हो जाती है। ठीक है, तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का मतलब इतना ही काम होता है।
और जो अबंडेंस होता है वो अगर हम TH/TC का देखें तो 2:1 का होता है। तो नेक्स्ट अब हम TH की प्रोसेसिंग देख लेते हैं। ऑल्दो हमने पढ़ लिया है कि कैसे वर्क करते हैं। मान लो स्किन है, यहाँ पर कोई इंजरी हुआ, एंटीजन आ गया, ठीक। मान लो तुम्हारा टिश्यू, तो टिश्यू में कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? मैक्रोफाज होती हैं। मैक्रोफाज के पास होता है TLR, इट इज टोल लाइक रिसेप्टर, और ये जो है इस एंटीजन को सेंस करेगी। फिर क्योंकि मैक्रोफाज आपकी फाइगोसाइटिक सेल होती है तो ये उसको अंदर इनगल्फ कर ले, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, फिर ये आएगी अंदर टी सेल के पास। ये आपका मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, तो इस पर भी MHC2 होगा। इसने उस एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट कर दिया। अब ये टी सेल ने उसको रिकॉग्नाइज किया अपने रिसेप्टर पे। टी सेल का रिसेप्टर भी मैंने नहीं बताया। ये टी सेल है आपका, तो अल्फ़ा बीटा बताया था ना मैंने, तो TH पर आपका TH सेल है, तो इन पर जो आपका अल्फ़ा बीटा मान लो रिसेप्टर, तो ये इसके थ्रू जो है रिकॉग्नाइज करेगा। और यहाँ पर होता है CD3 अंदर जो है सिग्नलिंग करता है और फिर साइटोकाइंस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर से इसने रिकॉग्नाइज किया, फिर अंदर सिग्नलिंग हुई, फिर टी सेल H सेल है, TH0 है, क्योंकि नाइव टी सेल है ना, फिर TH0। तो ये फर्दर जो है डिफ्रेंशिएट प्लोरीफरेट करेगी किसमें? प्लाज्मा टी सेल में, प्लाज्मा टी सेल में और मेमोरी टी सेल में, मेमोरी टी सेल में। और ये जो प्लाज्मा टी सेल्स हैं, ये जो है आपकी प्लाज्मा टी सेल, ये आपकी साइटोकाइंस का सिक्रेशन करती हैं। तो स्टार्टिंग में जो हमने देखा था तो वहाँ पर TH1 TH2 भी थी। तो अगर अलग अलग टी सेल जो है आपकी अलग अलग तरीके साइटोकाइंस का सिक्रेशन करती हैं, ठीक। तो जो TH1 सेल हैं, TH1, ये इंटरफेरॉन इंटरल्यूकिन 3, इंटरफेरॉन अल्फा, गामा, इसके पास एक होता है TG ये सब। और TH जो है वो इंटरल्यूकिन 3, 4, 10 और इसके साथ TGCSF। इन सब का काम क्या होता है? ये जो साइटोकाइंस हैं, जो साइटोकाइंस हैं, इनका काम क्या होता है? ये जो है जा करके अदर सेल्स पर बाइंड करती हैं, जिससे कि फर्दर और सेल्स का जो भी और आपकी इम्यून सेल्स हैं, चाहे वो माइलॉइड हो या फिर लिम्फॉइड हो, ग्रेनुलोसाइट्स हो, उनका सिक्रेशन हो सके, जिससे कि उस मतलब अल्टीमेटली काम क्या है हमारा कि उस एंटीजन को एलिमिनेट करना है ना। तो उस एंटीजन को एलिमिनेट करने के लिए और इम्यून सेल्स चाहिए। तो ये जितने भी साइटोकाइंस हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, या फिर ये जी नहीं, ये GMCSF, कंफ्यूज हो गई मैं। GMCSF, दैट इज योर ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफाज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। यहाँ पर भी GMC, तो ये हाँ, क्या बता रहे थे कि ये जा करके अदर सेल्स पर बाइंड करते हैं, जिससे फिर फर्दर जो है और जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनका सिक्रेशन हो सके और उस एंटीजन को एलिमिनेट किया जा सके। TH1 इसे सिक्रेट करती है, TH2 इन साइटोकाइंस का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर इंटरल्यूकिन 3 और यहाँ पर TH1 जो है इंटरल्यूकिन 2 का भी सिक्रेशन करता है, ठीक है। 10 और यहाँ पर इंटरल्यूकिन 6 का भी सिक्रेशन होता है। तो TH2 से जो भी साइटोकाइन सिक्रीट होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती हैं, ठीक। और TH1 से जो होती हैं वो प्रो इन्फ्लामेटरी होती हैं, ठीक है। तो
ये हो गया साइटोकाइंस के बारे में, कौन सी टी सेल कौन से साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। TH2 वाले एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होंगी, वायरल इन्फेक्टेड जो भी सेल्स होंगी वो इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा सिक्रीट करेंगे। तो ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद मुझे बस ऐसा जनरल नॉलेज बताना है कि जब भी कोई फीवर होता है तो हम जब जाते हैं ब्लड टेस्ट के लिए तो वहाँ पर TLC टेस्ट वो करते हैं ना, तो उसमें ये T सेल का काउंटिंग करते हैं, ठीक है। और जो हमारी मेजर इम्यून सेल है, ठीक है, अप्रॉक्स 80% आपकी T सेल्स ही होती हैं। तो अगर कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो T सेल का नंबर बढ़ जाएगा। कैसे? ये साइटोकाइंस का सिक्रीशन हुआ ना TH1 TH2 से, तो ये जो जा करके बाइंड करते हैं, फिर और ज़्यादा T सेल्स का सिक्रीशन और अदर इम्यून सेल्स का सिक्रीशन होता है। तो अगर T सेल का नंबर बढ़ा है तो मतलब बॉडी में एंटीजन है, तो इसी से पता करते हैं। तो उसमें जो है ये T सेल की काउंटिंग होती है, ठीक है। और इसके अलावा और क्या बताना है? बस फिर अब आते हैं हमारे डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक, जैसा कि मैंने बता दिया, सबसे प्रोफेशनल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो डेंड्राइटिक सेल ही हैं। और ये फाइगोसाइटोसिस शो करती हैं, साइटोसिस शो करती हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द साइट इनका नाम चेंज होता है। जैसे कि अगर स्किन में प्रेजेंट होंगी तो उन्हें लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो स्किन में जो है उन्हें कहते हैं लैंगरहैंस सेल्स। और अगर लिम्फ लिम्फ नोड में प्रेजेंट होंगी, नोड में अगर प्रेजेंट होंगी तो उन्हें हम कहते हैं इंटरडिजिटोटिन। ये सारे नाम याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पूछ लें। और अगर लंग्स में प्रेजेंट है, लंग्स या लीवर में, तो उसे हम कहते हैं इंटर गलत हो गया, तो इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल। और उसके अलावा अगर जो ब्लड में होती हैं जब ये, तो उन्हें हम कहते हैं ईलेट सेल, ओके। हाँ, दैट्स ऑल अबाउट योर डेंड्राइटिक सेल। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि डेंड्राइटिक सेल आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग का काम करते हैं। तो इसको भी देखो, MHC मॉलिक्यूल है, CD4 ने MHC2 को, MHC2 होगा, MHC2 को रिकोगनाइज किया, फिर एंटीजन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक। तो ये बी सेल रिसेप्टर है, यहाँ से सिग्नलिंग हुआ, यहाँ पर एक और जो है सिग्नलिंग, जैसे मैंने बताया ना B7 बी सेल भी प्रेजेंट होते हैं। और जो है डेंड्राइटिक सेल भी होते हैं, को स्टिमुलेटर सिग्नल देते हैं, मतलब जो सेकंड सिग्नल जाएगा वो इसके थ्रू। फिर उसके बाद जो है सिग्नल, यहाँ पर देखो साइटोकाइंस बाइंडिंग हो रही है, तो फिर ये सेल फिर फर्दर टी सेल भी फर्दर डिफ्रेंशिएट और प्रोलिफरेट करेगी। और जो है ये डेंड्राइटिक सेल तो एक्टिवेट होने के बाद ही जो इसने टी सेल को एंटीजन प्रेजेंट किया है, ओके। ये हो गया आपका डेंड्राइटिक सेल के बारे में। इसके अलावा जो पर मार्कर प्रेजेंट होता है वो होता है CD141, और ये फाइगोसिटिक होती है, ये मैंने बता दिया। तो आगे जो सेल आती है वो होती है मास्ट सेल। मास्ट सेल का काम भी जो है लगभग आपका बेसोफिल जैसा ही है, बेसोफिल जैसा ही वर्क करता है। दे ऑल्सो रिलीज हिस्टामिन, तो जब एलर्जिक रिएक्शन हो गया तो मास्ट सेल का भी नंबर बढ़ेगा। और जब ये एलर्जिक रिएक्शन में आ रहे हैं तो व्हाट टाइप ऑफ रिसेप्टर विल बी प्रेजेंट, दैट इज योर IgE। तो इनके पास IgE रिसेप्टर होता है, ओके। और एज आई सेड कि ये हिस्टामिन का सिक्रेशन करते हैं, ओके। और ये फिर हिस्टामिन जो है क्या करता है, डायलेशन, ओके। और मास्ट सेल पे जो CD प्रेजेंट होता है, तो CD इज
CD34 CD34 प्रेजेंट होता है मास्ट सेल पे। तो यहाँ इस फिगर में भी देखो एंटीजन यहाँ पे IG इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, रिसेप्टर है तो इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड किया, फिर उससे एंटीजन बाइंड किया, फिर जो है उसके अगेंस्ट फिर ये हिस्टामिन का सिक्रेशन हो रहा है और जो है डीग्रेनुलेशन हुआ, मतलब अंदर जो ग्रेन्यूल्स थे वो मतलब ओपन हुए और फिर वहाँ से हिस्टामिन का सिक्रेशन हुआ। फिर बढ़ते हैं आगे, हमारी है NK सेल्स, दैट इज़ योर नेचुरल किलर सेल्स। ये इनेट और एडेप्टिव दोनों में आती हैं। तो नेचुरल किलर सेल कैसे वर्क करती हैं, ये थोड़ा थोड़ा जो आपकी TC सेल हैं, TC सेल की तरह काम करती हैं। कैसे, लेकिन बस एक ही फंक्शन का TC से सिमिलर है, तो अभी आगे बताएंगे हम। तो जैसे ये NK सेल है, NK सेल पे जो है आपके दो तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट। दैट फर्स्ट वन इज KIR एंड सेकेंड वन इज KAR। KIR स्टैंड फॉर inhibitory receptor और AR that is activatory killing inhibitory receptor or killing activation receptor. Okay, what happen, this KI and KA, they sense for this MHC molecule. So whenever there is a healthy cell, that is your normal cell, so there will be the presence of this MHC1. So it senses this MHC1 and it gives inhibitory signal, that is there will be no killing. तो ये सेल प्रोटेक्टेड रहती है, नॉर्मल सेल को किल नहीं करेगा NK सेल। अगर कोई भी इन्फेक्टेड सेल है, सपोज दिस इज योर ट्यूमर सेल, तो एज आई सेड अर्लियर कि ट्यूमर सेल पर आपका MHC मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो ये MHC के लिए सेंस करेगा, देयर विल बी नो MHC मॉलिक्यूल, तो ये एक्टिवेशन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे और फिर जो है सेल की किलिंग, ट्यूमर सेल की किलिंग हो जाएगी। कैसे होगी, परफोरिन और ग्रेंजाइम के सिक्रेशन से। यही फंक्शन आपका TC से मैच करता है। तो परफोरिन पोर्स क्रिएट करते हैं, ग्रेंजाइम सीरियन प्रोटीज हैं जो कि एपोप्टोसिस करवा देते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर NK सेल्स। कमिंग टू योर मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट का कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है। मोनोसाइट एज आई सेड अर्लियर वो डेंड्राइटिक सेल में भी जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं और वो मैच्योर होकर के मैक्रोफाज में प्रेजेंट में भी कन्वर्ट होते हैं। मैक्रोफाज आपका टिश्यू में प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अलावा ये ऑस्टियोक्लास्ट भी बनाते हैं। तो ऑस्टियोक्लास्ट आपकी एक तरह की बोन सेल है, ये बस जनरल नॉलेज के लिए डाल दिया मैंने। इसके अलावा जो मोनोसाइट होती हैं ये आपकी फाइगोसाइटिक होती हैं। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस शो करती हैं। इस पर जो CD प्रेजेंट होता है वो होता है CD64। ठीक है, और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह भी काम करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मेजरली आपका जो B सेल और डेंड्राइटिक सेल और मैक्रोफाज होता है सिर्फ यही होती हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मोनोसाइट। नेक्स्ट है मैक्रोफाज। नहीं बता देते। तो मैक्रोफाज में ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्रोफाज का आगे मैंने रोल बता दिया है कि मैक्रोफाज आपके टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं, प्रेजेंट इन टिश्यू, और वो एंटीजन प्रेजेंटिंग की सेल की तरह काम करती है, दैट इज़ योर APCs की तरह काम करते हैं। और हाँ, फाइगोसाइटोसिस शो करते हैं। तो ये हो गया मैक्रोफाज के बारे में कि जो जब भी कोई एंटीजन आएगा, ये मान लो ये मैक्रोफाज अगर प्रेजेंट है तो ये उसको इंटरनलाइज कर लेगी, फिर उसका लाइसोसोम से का जो है डिस्ट्रॉय करेगी उसे, फिर जो उसे अदर सेल T सेल को प्रेजेंट कर देगी, फिर जो है T सेल बाकी उसका काम करेगी। तो ये आगे मैंने T सेल के बारे में जब बताया था तब बता दिया था मैक्रोफाज का कैसे वर्किंग होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर इम्यून सेल्स। एक हम ये लिंक देख लेते हैं, हाउ दिस इनेट इम्यूनिटी एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी इज लिंक्ड। सो व्हेनेवर वायरस इंटर, तो उसके रिस्पॉन्स में इंटरफेरॉन जो है सिक्रीट होता है। डिफेंसिन भी है बैक्टीरिया के लिए, और बैक्टीरिया का कैसे किलिंग होता है, लाइसोसोम के थ्रू। लाइसोसोम आपका जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इस एंजाइम से ये बैक्टीरिया का किलिंग होता है, लाइसिस हो जाता है।
कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है सेल लाइसिस में, या वो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पढ़ेंगे जब हम आगे पढ़ाएंगे। और मास्ट सेल जो है ये एज अ ग्रेनुलोसाइट की तरह काम करते हैं, तो इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो फिर जो भी आपका एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो होता है, ठीक है। और उसके अलावा ये PMN इज योर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो इसमें आपके वही ग्रेनुलोसाइट्स ही हैं, ठीक है। तो वो जो है किसी भी इंजरी पे जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको सही करेगा कि कोई भी फर्दर इन्फेक्शन ना हो पाए। और यहाँ देखते हैं ये एडेप्टिव इम्यूनिटी में, तो यहाँ पर एंटीबॉडी का सिक्रेशन हो रहा है किससे, बी सेल्स आपकी एंटीबॉडी को सिक्रेट कर रही हैं, ठीक। और यही एंटीबॉडी आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ओके। इसके अलावा ये टी हेल्पर सेल है, तो बी सेल को ये हेल्प करता है कैसे, साइटोकाइंस का सिक्रेशन करके साइटोकाइंस बाइंड करते हैं, फिर बी सेल फर्दर और एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। और टी सेल जो है साइटोटॉक्सिसिटी भी शो करते हैं किससे, टीसी सेल से, ठीक। और नेचुरल किलर सेल भी मैंने बताया था अभी कि टीसी की तरह काम करता है। तो ये इस तरह मतलब लिंक्ड है एक दूसरे से, एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी। तो दैट्स ऑल अबाउट योर इम्यून सेल्स। तो हमने इसमें जो है आपकी जितनी भी इम्यून सेल्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और सॉरी ग्रेनुलोसाइट्स और ये ग्रेनुलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, माइलॉइड्स, सबके बारे में पढ़ लिया है, ओके। तो गेट में इतना ही पूछते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं, कि इतना पूछेंगे कौन सी सेल का क्या वर्किंग है और कौन सी सेल कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, और बी सेल का और टी सेल का फंक्शन, वो अभी हम एक एडेप्टिव इम्यूनिटी का चैप्टर बनाएंगे तो फिर उसमें होगा डिटेल में। इनेट का तो हमने देख लिया है, इनेट में इतना ही था, एडेप्टिव के लिए एक अलग से वीडियो बनेगा। एक और मुझे बताना था याद करने के लिए कि जैसे ये याद रखना कि TH सेल है, TH पर MHC मतलब TH जो है MHC2 को रिकॉग्नाइज करता है किससे, CD4 से, और ये किसके लिए होता है, एक्सोजीनस एंटीजन के लिए होता है, ठीक है। मतलब सेल के बाहर क्योंकि वो प्रेजेंट होता है ना, कि देखो जैसे ये MHC है तो ये सेल के बाहर प्रेजेंट हो रहा है, तो ये एक्सोजीनस एंटीजन के लिए होती हैं TH सेल। TC सेल के लिए ये जो इन पर जो CD8 होता है, ये किसको रिकॉग्नाइज करते हैं, MHC1 मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और ये एंडोजिनस एंटीजन के लिए होता है। क्यों, क्योंकि जो सेल के अंदर एंटीजन होता है ना, सेल के अंदर एंटीजन रहता है, तो ये TC जो है उसको रिकॉग्नाइज करके फिर उस सेल को जो है परफोरिन और ग्रेंजाइम के हेल्प से किल कर देते हैं। इसलिए एंडोजिनस एंटीजन के लिए TC सेल और एक्सोजिनस के लिए TH सेल। तो ये बस मतलब क्योंकि पूछते हैं एग्जाम में ऐसे अलग अलग सफल करके, तो याद रखिएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट योर इम्यून सेल्स। एडेप्टिव का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसके अलावा हम MHC मॉलिक्यूल को भी अच्छे से बताएंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, गो थ्रू दिस लेसन। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो जाएगा।